Hello, students. Again, I Hemant. Welcome to you in Hamdisha English classes. Today, I am going to teach you the lesson Glimpses of India from 10th class first flight, lesson number 7A. Here, the poet, no, the narrator, rather, Lucio Rodriguez, he has made you understand the complete glimpse from India, different places, first from Goa, Cook and Assam. He wants to explain you how beautiful India and what are the different diversities over there. So before learn to this chapter, when I am going to make you understand, I will to request rather as usual I request open your book, go through line by line, then you will be able to understand. So from this lesson 7th A from 10th class first flight, the glimpses of India, इसका हिंदी में मतलब है भारत की एक झलक. द फर्स्ट लेसन अ बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा का बेकर. द नरेटर इज लूसियो रॉड्रिग्स. Before you read, I would like to have utter some activities which should be discussed in the class. What images of people and the places come to your mind when you think of your country? What parts of India have you lived in or visited? Can you name some popular tourist destinations? You may know that apart from the British, the Dutch and the French or Portuguese have also played a part in the history of our country. Can you say which part of India has shown French and Portuguese influences? Can you say which part of India grow tea, coffee? Well, here I would like to explain you the version in Hindi that will be much more enable you to make you understand. ये इस बात को कक्षा में आप चर्चा कर सकते हैं. जब आप अपने देश के बारे में सोचते हैं तो लोगों के और जगहों के किस प्रकार के चित्र आपके ध्यान में आते हैं. आप भारत के किन भागों में रह चुके हैं या देख चुके हैं? क्या आप किसी लोकप्रिय पर्यटन स्थान का नाम बता सकते हैं? आपको ज्ञात होगा कि ब्रिटिश, डच, हॉलैंडवासी और फ्रेंच फ्रांसीसी के अलावा पुर्तगालियों ने भी हमारे देश के इतिहास में काफ़ी योगदान दिया है. क्या आप बता सकते हैं कि भारत के किन भागों में फ्रेंच और पुर्तगाली प्रभाव दिखाई देता है? क्या आप बता सकते हैं भारत के किन भागों में चाय कॉफ़ी की पैदावार होती है? ताइए इसके तारतम्य में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा लेसन नंबर फर्स्ट फ्रॉम ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया फ्रॉम 10th क्लास फर्स्ट फ्लाइट या लेसन नंबर 7A. नरेटर इज लूसियो रॉड्रिग. आइए चालू करते हैं. दिस इज अ पोएम पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गोयन विलेज बेकर who still have an important places in this society. Once again, I would like to read this line. This is a pen portrait of traditional Goan village baker who still has an important place in this society. यह गोवा के एक पारंपरिक ग्रामीण बेकर का चित्रण है जिसका अभी अपने समाज समुदाय में महत्वपूर्ण स्थान है. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good and Portuguese days. The Portuguese and their famous loaves of bread, those enters of loaves might have vanished, but the bakers are still born. We still have amongst our mixers the modelers and those who make the loaves
These old age time tested furnaces still exist. The fire in the furnaces has not been yet extinguished. The third and jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. Maybe the father is not alive, but the son will carry on the family professions. These bakers are even today known as padder in Goa. इसका हिंदी अनुवाद में समझाना चाहूँगा आपको। हमारे बुजुर्ग अक्सर उन पुराने बेहतरीन पुर्तगाली दिनों की याद करते हुए सुने जाते हैं। पुर्तगाली उनकी प्रसिद्ध ब्रेड, डबल रोटी, उनका मेन रोटी मतलब ब्रेड, पाव, ये उनका खाद्य पदार्थ था पुर्तगाली लोगों का। वे ब्रेड खाने वाले शायद गायब हो गए हो, पर बनाने वाले भी अभी हैं। हमारे बीच में अभी भी ऐसे लोग हैं जो ब्रेड का आटा मिलाते हैं, सांचे में डालते हैं। वे बहुत पुरानी उस वक्त की भट्टियाँ अभी भी मौजूद हैं। उन भट्टियों की आग अभी भी बुझी नहीं है, अर्थात अभी भी कार्यरत है। वो पारंपरिक बेकर के डंडे की खटखट की घंटी की आवाज़ जो सुबह उनके आने की सूचना देते हैं, अभी भी कई जगहों पर सुनी जा सकती है। हो सकता है पिता शायद जीवित न हो, पर बेटे ने अपने पारिवारिक पेशे को अभी तक संभाल के रखा है। बहुत अच्छी बात है। एक ट्रेडिशनल बिजनेस इज गोइंग ऑन। आज भी ये बेकर गोवा में पैडर नाम से जाने जाते हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड्स, कंपेनियन एंड गाइड. He used to come at least twice a day. When we set out in the morning, I selling song and the dance again. When they return, thereafter I am tying the buckets. The jungly shutters of bamboo woke up from sleep, wherein to match and greet him. Why is to? Why it was for the loaf? Not at all. The loaves were brought by some paskins, the maid servants of the house. The loaves were brought by some paskins or bastins in the maid servants of the house. What we longed for that were those for bread bangles which may choose carefully. Sometimes it was sweet bread and special milk. इसका हिंदी अनुवाद में समझाना चाहूँगा। गोवा में हमारे बचपन में हमारा दोस्त, साथी, वो मार्गदर्शक हुआ करता था, ऐसा इस लेखक का कहना है। वह दिन में कम से कम 2 बार आया करता था। एक बात इसके पहले बता दूं कि ये जो लेखक हैं, बहुत बड़े लेखक हैं और इनको पूरी दुनिया घूमी है। लूसियो रॉड्रिग्स, इन्होंने ये सब काम होते हुए देखा है। बेसिकली ये कोई स्टोरी नहीं है, ये एक वर्णन है, पेन पोर्ट्रेट है, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ। तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जब वो अपना सामान बेचने के लिए निकलता था, कौन? पाव बनाने वाला बेकर जो निकालता था, और दूसरी बार अपनी बड़ी सी टोकरी के खाली हो जाने के पश्चात लौटता था। उसकी बांस की घंटी नुमा खटखट हमें नींद से जगा देती थी, ऐसा इस लेखक का कहना है। और हम उससे मिलने और उसका स्वागत करने भागते थे। ऐसा क्यों होता था? क्या वह ब्रेड के प्रति लगाव की वजह से था? नहीं 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 नहीं, हरगिज नहीं। ब्रेड के पैकेट तो पेस्टिन या बेस्टिन, ये नौकरों के नाम थे, द्वारा घर में लाए जाते थे, जिसका उत्सुकता से लोग इंतज़ार करते थे। वे चूड़ी के आकार की गोल ब्रेड जिसको ध्यान से चुनते थे। कभी कभी खास किस्म की मीठी ब्रेड भी होती थी। नंबर 3, the baker made the musical anti of the scene of jing jang sound of specially made bamboo staff. One hand supported the basket on his head and other banged the bamboo on the ground. He would greet beautifully the greeting the lady of the house with good morning and then place this basket on the vertical bamboo. We kids could be
pushed aside with a mild rebuke, and the loaves would be delivered to servants. But we would not give up. We would climb a bench of portrait and peep into the basket. Somehow, I can still recall the typical fragrance of those loaves. Loaves for the elders and the bangles of children. Then we did not even care to brush out our teeth, wash our mouth properly. And why should we? Who would take the trouble of plucking mango's leaf of the toothbrush? And why was it necessary at all? The tiger never brushed his teeth. Hot tea could wash the clean up everything so nicely. यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। LOAF लोफ का मतलब होता है रोटी, और जब इसका अनेक वचन हो जाता है तो F हट जाता है तो LOAVES हो जाता है। जब भी F और FE किसी संज्ञा के आगे आते हैं तो उनका अनेक वचन करने के लिए VES लग जाता है। इसी प्रकार लोफ रोटी का अनेक वचन करने के लिए F हट के VES लग जाता है, तो इसका मतलब होता है रोटी। बेकर अपने खास तरीके से बने बांस के डंडे से झैंग झैंग की आवाज़ के साथ अपनी संगीतमय उपस्थिति दर्ज करवाता था। एक हाथ से अपने सिर पर रखी टोकरी को संभालता था, दूसरी बांस को जमीन पर मारता जाता था। वह घर की महिला का गुड मॉर्निंग कहकर अभिवादन करता था, फिर अपने खड़े बांस पर अपनी टोकरी टिका देता था। हम बच्चों को हल्की सी खिड़की के पास पीछे को कर दिया जाता था और नौकर को ब्रेड दे दी जाती थी, लेकिन हम हार मारने वाले नहीं थे भैया। हम बेंच पर चढ़ जाते थे, बुल्डेर पर चढ़कर किसी तरह टोकरी में झाँकते थे। इतना क्रेज था हमारे मन में उस ब्रेड के प्रति। मुझे अभी भी उन ब्रेड की खास खुशबू याद है। ब्रेड बड़ों के लिए और चूड़ी जैसा गोल ब्रेड बच्चों के लिए। फिर हम ठीक से दांतों को ब्रश करने, मुंह धोने पर ध्यान नहीं देते थे, और ऐसा करते भी क्यों? कौन चढ़कर आम के पत्ते को ब्रश बांटने का झंझट ले? ये जरूरी भी नहीं था। कभी कभी दांत साफ नहीं करता था। गरम चाय सब कुछ अच्छी तरह से साफ कर दी थी, कैसे भी। आइए इसके आगे पढ़ते हैं। मैरिजेस गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द वॉल, just as a party on the feast loses in charm without bread. Not enough can be said to show the importance of baker can be for a village. The lady of house must prepare sandwiches on the occasions of her daughter's engagement, cakes, and so many things like bolines are the most of Christmas as well as other festivals. Thus, the presence of the baker's furnace in village is absolutely essential. इसका हिंदी अर्थ ऐसा है, पीली ब्रेड, पीली पीली ब्रेड हुआ करती थी उस समय, उसको बोल कहा जाता था। उसके बिना शादी के उपहारों का कोई मतलब ही नहीं होता था। मतलब शादी में यदि ब्रेड का उपहार, ब्रेड के बने हुए व्यंजनों का उपहार नहीं दिया गया था तो मेहमान लोग बुरा मान जाते थे। ये उस समय का ट्रेडिशन था। ठीक उसी प्रकार किसी तरह किसी भी पार्टी की दावत का ब्रेड के बिना अपना आकर्षण खो देना गांव के लिए बेकर जितना महत्वपूर्ण होता है, ये इससे ज़्यादा बयान नहीं किया जा सकता। घर की महिला को अपनी बेटी की सगाई के अवसर पर सैंडविच बनाने ही होते हैं। क्रिसमस और दूसरे त्योहारों पर बैंक, किसके बैंक? यहाँ पे बैंक पर तो बैंक वाला बैंक नहीं जो ऑफिस होता है, केक के बैंक्स और नारियल के बिस्कुट आवश्यक है। इसलिए गांव में बेकर की भट्टी उपस्थिति निहायत ही ज़रूरी है। हाँ, बेकर की भट्टी तो बनाना पड़ेगी, तभी तो उसमें से बेक बनेगी ना, और पाव बनेगी। यही पुर्तगालियों का भोजन का स्पेशल अंग हुआ करता था। द बेकर्स ऑफ ब्रॉसा ऑफ those days had a particular dress known as the kabai.
It was a single piece long fork reaching down to the knees. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which was shorter than full length ones and longer than half pants. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comments that he is dressed like a padder. बेकर या ब्रेड बेचने वालों की उन दिनों की खास किस्म की पोशाक हुआ करती थी जिसे कबाई कहा जाता था। ये एक लंबी फ्रॉक जैसी घुटनों तक की एक ही कपड़े की पोशाक होती है। छोटे छोटे बच्चे जैसे ट्यूनिक पहनते हैं स्कूल ड्रेस में, लगभग उसी प्रकार की। हमने अपने बचपन में बेकरों को कमीज और पैंट में पहने देखा है, क्योंकि पूरी पैंट से छोटी और नेकर से लंबी होती थी। आज भी ऐसे नेकर पहने जो घुटनों तक के हों, उसे यह सुनना पड़ता है कि उसने पैडर जैसे कपड़े पहने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। द बेकर्स यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. Monthly accounts used to be recorded on the same wall and the pencil. Booking was indeed a profitable profession in old days. The baker and his family never starved. Next, his family, he and his family and his servants always looked happy and prosperous. Their plump physics was an open testimony to this. Even today, any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker. इसका हिंदी अर्थ है, बेकर अपना भुगतान अक्सर महीने के आखिर में लेता था। महीने का हिसाब किसी दीवार पर पेंसिल से लिख दिया जाता था। उन दिनों बेकिंग एक मुनाफे वाला व्यवसाय था। बेकर और उसके परिवार को कभी भी खाने की कमी नहीं रहती थी। वो, उसका परिवार, उसके नौकर हमेशा खुश और संपन्न दिखते थे। उनका मोटा थुलथुल व्यक्तित्व इस बात का सच्चा सबूत था। आज भी अगर किसी व्यक्ति की शारीरिक बनावट कटहल जैसी दिखे तो उसकी तुलना बेकर से आसानी से की जाती है। स्टूडेंट्स, इस पाठ से हट के एक बात बताऊंगा। आज आप लोगों को पाव भाजी बहुत पसंद है। ये पाव भाजी बनने का तरीका, भाजी तो क्या चलो बात अलग हो गई, लेकिन पाव बनने का तरीका पुर्तगालियों के समय से गोवा में चालू हुआ था और आज बहुत ही रिस्पेक्टेबल डिश, बहुत लोगों की फेवरेट डिश मानी जाती है पाव भाजी। तो जो पाव भाजी की पाव है, उस पाव का उत्पादन इन्हीं पुर्तगालियों के समय से चालू हुआ था। ये आपके ज्ञान में डालना चाहता हूँ। देखिए, इसके अलावा एक छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चंस पैदा हो सकते हैं। एक क्वेश्चन से एक आध दो क्वेश्चन के मैं आपको गाइड कर देता हूँ। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? गोवा में बुजुर्गों का किन बातों से मन भर आता है? द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट those good old days that date back about the time of Portuguese and their famous loaves of bread. या गोवा में बुजुर्गों का उन बेहतरीन पुराने दिनों को याद करके मन भर आता है जब पुर्तगालियों का ही समय था, यानी कि पुर्तगाली भारत में रहते थे। वे उनके समय के प्रसिद्ध ब्रेड को याद करते थे। सेकंड क्वेश्चन आता है, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा? हाउ डू यू नो? क्या अभी भी गोवा में ब्रेड बनाने का काम प्रचलित है? क्या आप जानते हैं? द लोव्स ऑफ ब्रेड आर स्टिल पॉपुलर इन गोवा. The third and jingle of the traditional baker's bamboo can be still heard in the morning. The author mentioned that the furnaces existed in their fire has still not extinguished. Hence, we can see that bread making is still popular in Goa. हाँ भाई, सही बात है। ब्रेड बनाने का काम गोवा में अभी भी प्रचलित है। सुबह बेकर के प्रारंभिक बांस और डंडे की घंटी के खटपट आवाज़ आज भी सुनाई पड़ जाती है। लेखक ने लिखा होगा क्या लिखा, ये कि भट्टियाँ अभी भी चलती है, उनकी आग अभी भी बुझी नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि गोवा में भी ब्रेड बनाने का काम प्रचलित है।
व्हाट इज द बेकर कॉल्ड? बेकर को गोवा में क्या कहा जाता है? बेकर को गोवा में पेडर कहा जाता है। When would the baker come every day? Why did the children run to meet him? बेकर रोज कब आया करता था? बच्चे उससे मिलने को क्यों भाग कर आते थे? The baker would come in twice in a day. The children ran to meet him for the bread bangles. हाँ, बेकर दिन में 2 बार आया करता था और बच्चे उससे चूड़ी वाली ब्रेड लेने के लिए भाग जाते थे। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आंसर्स, बहुत अच्छा पाठ, बहुत खूबसूरत पाठ। आप इसकी स्टडी लगातार कीजिएगा। वंस यू गो थ्रू दिस चैनल and definitely I am not confident but that confident you will like to listen all of these things and you must be happy. So please I request rather to subscribe my channel, like, share everywhere and get a good marks while going through all of this lesson. If you are concentrating each and every word of mine, so far as English is concerned and so far Hindi explanation is concerned, by given pause you can understand again and again. So I assure you that you will not be able to go back and you will be able to achieve high and higher marks. So please go through it. Have a nice day. Live happily. Have a nice life. Good day. Goodbye. Jai Hind. Jai Bharat. Thank you. Thank you very, very much, friends.